Welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I am presenting another video. Let's find out whether there is any chances for reconciliation between Priyanka and Ankit. So we need to find out today that what is going to be what is going to happen next in their relationship. So let's find out and let's get started. Let me shuffle the cards first. So spirits, please tell me what is the current energy of Ankit and Priyanka? What is the current energy of Ankit? 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 So Ankit is daydreaming about like Priyanka. He's like thinking 24/7 about her only, and he's really tense. He's thinking and missing her. He's even if he's like he's holding a pillow, or he's standing in front of a mirror. He's just thinking about her. He's thinking about all these memories. Like all those times, all those memories, which he spent with Priyanka, and he's like recalling all those memories again and again in his mind, in his thoughts. So and he's reliving the moments which he's like which the time which he spent, the time the memories which they made together. He's just reliving all the moments in his head. Okay, and he's like waiting, he's waiting, and he's like looking at her from far. He's like waiting for this like time to go, and situation to get healed, and things to get calm down. He's just thinking, waiting, and looking, and looking at her from far, waiting for this time to get cool down, relax, and things to unfold on its own. And he's even planning that what is the next step I should take in this relationship, so that this relationship she and I, like both of us, will get in come on the same page. So basically what he's thinking is, he's thinking that what should I do in this relationship next, so that we both will come on the same page. that इसका मतलब ये है कि हम ऐसा क्या करें कि जो ये दोनों है वो सेम पेज पे आ जाए. सेम पेज पे आने का मतलब क्या है कि अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं, तो एक रास्ते पे हम कैसे आए, एक जगह पे एक डिसीजन पे हम लोग कैसे आए. दिस इज व्हाट इज थिंकिंग. He's in a hangman situation. He's not taking any steps. He's like not moving ahead, not taking any steps. He's just staying stubborn. He's like acting like a stubborn person. Stubborn means जिद्दी हो गया है, जिद्दी लोगों की तरह behave कर रहा है. He's not taking any steps. He's not moving ahead. And even if he knows that if he go like towards Priyanka, and if he say sorry, or he will smile at her, or like say that okay, I will marry you, or give me some time, things are going to get like normal. But he's not taking any steps ahead, because he's thinking that
let things calm down, let things unfold on its own. And because he's having chaos in his mind, he's like stressed, highly stressed out. He's like you know he's in a toxic situation right now. He's overthinking about he's like, he's mixed, his feelings are mixed. He's thinking about the past, and he's thinking about the present is he's thinking like, oh, why should I go? It's about my ego. If she left the house, if she left me, it's her decision. Why should I go and say her sorry? If she wants, she will come back to me. This is the first thing he's thinking. And then he's like thinking about the past. Oh, what wonderful days we spent together, what memories we had. And he's reliving all those moments. So he's in a dual mindset. And he's like overthinking about her and about the past. He's thinking about when they used to live together as a family, when they were like happily living together, making money together. Like, he's helping her out in making money. She's like being his support also. And they both were living like a family, loving, caring, nurturing each other, supporting each other in highs and lows of life. And and helping each other out in, like, days, rainy days, when they were not having when the other person is not financially strong. Then being a support and standing next to that person. These all, when you are in a relationship, when anybody, I'm talking in general. If it's not about Priyanka and Ankit, it's about like other people as well. If like two people are like living together, and they are not only like doing romance, sex all the time. They are like, when two people are coming together, they are living each and every moment of life. They are staying with each other in highs and lows of life. They are being each other's support in life. They are like, trying to support each other in like making monies, and helping each other out in like being financial abundant, and supporting each other out in like, moving ahead in their career, and taking care for each other as a couple, taking care for each other as parents, loving each other as a couple, and taking care for each other as a parent. And playing each other with each other, and doing some being playful with each other like brother and sister. So all these memories, yeah. A couple, when two people are coming together, as a couple, they live all the memories, yeah, so that the other person will not miss their family, or his or her family. Okay, so this is what it is. He's missing all those times, and he's thinking about passionate beginning with her, and he's sexually attracted towards her. And he's thinking about like, should I take should I like take a step ahead and go towards her, or should I like convince her or say sorry to her. But he's at the same time, he's thinking that we are two different personalities. Yeah, we are two different personalities, and we are not on the same page. So basically his energies is like, he wants to move ahead, but he's taking his step backward. Why? Because he's thinking same, like he's thinking, he's having two mindset. He like in one mindset, he wants to just move ahead and like say sorry to her, convince her, and hug her, love her, and like bring her back in his life. But at the same time, he's thinking that, oh, we both are having different personalities, we both are different from each other. And if we are not on the same page, what is the point of like convincing her and bringing her back in the life? If if God has like separated us for a reason, then it's fine, let it be. And if he wants us to be together, then he will bring her back in my life. Understand? This is what he's thinking. So ये जो है मैं हिंदी में भी बताऊंगी. I'm gonna explain everything in Hindi, because most of the people on my channel are now coming, and they just want me to make videos in English, because they are having a hard time understanding what I'm trying to say in Hindi. So for them, I'm just making an attempt to like make videos in English and Hindi both, so that all of you who are my audience, not having a will not like do not have any problem in understanding the things. Okay, he wants stability. He wants to offer her stability, but at the same time,
he's thinking to not like he's thinking that what is the point, what is the point of giving her stability, because this relationship is not going to grow anywhere. This is not going to grow, like there is no growth in this relationship, because sooner or later she is going to ask me for the marriage, and right now I'm not like I'm not ready for the marriage, I'm not ready for the commitment, I'm not ready for the lifetime commitment. And she wants family, she wants kids, and he needs time. So the timing is wrong. This is why he's thinking, he's having a dual mindset. With one mindset he's thinking that okay, I need like to convince her, bring her back, give her stability, give her commitment, I need a passionate beginning with her. But at the same time he's thinking that what is the point, because even if I go and convince her and bring her back in my life, but she is not there is no growth in this relationship, so it's better to let it be, get things unfold on its own, things get calmed down, let her get calmed down, me to get like calmed down as well. Then later on down the line, if we both want, then and if the God want us to be together, then things will unfold on its own. This is what he's thinking right now. So अब मैं हिंदी में बताती हूँ सबको. देखिए क्या है कि अंकित क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं जल्दी बताऊंगी, मैंने इंग्लिश वालों के लिए बहुत टाइम ले लिया चीज़ों को समझाने के लिए, एंड आप लोग तो बहुत ही अच्छे समझदार लोग हैं, तो फटाफट से बता देती हूँ. देखो, ये अपने उसके प्रियंका के लिए दिन रात सोचता है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है उसके बारे में. एंड वो ऐसे जब शीशे के सामने खड़ा होता है, या फिर तकिए को लेके बैठता है, या आपने किसी मतलब लाइक किसी जानवर के साथ भी खेल रहा होता है, या कुछ भी मतलब कर रहा होता है, 24/7 उसको बस प्रियंका की एनर्जी महसूस होती है. उसको बस ये लगता है वो मेरे आसपास है. उसी को शीशे के सामने खड़ा होता है तो भी उसको वही नजर आती है. वो उन सारे थॉट्स को जो सारा समय उसने उसके साथ बिताया, जो मेमोरीज उन लोगों ने बनाई, उन सारी मेमोरीज को, उन सारे थॉट्स को वो जो है रीलिव करता है. वो दोबारा से अपने माइंड में उसको रीप्ले करता है, सोचता है, फिर रीप्ले करता है, फिर सोचता है. उसका ये हालत है. और फिर क्या है, वो वेट कर रहा है किसी अपॉर्चुनिटी का. वेट अपना दूर से उसके लिए प्लानिंग कर रहा है कि क्या करूँ मैं ऐसा जो चीज़ें जो हैं ठीक हो जाए. फिर वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि सिचुएशन काम डाउन हो जाए, एंड उसके बाद में कोई नेक्स्ट मूव लूँगा. फिर वो तीसरी चीज़ का क्या वेट कर रहा है, तीसरी चीज़ का वो ये वेट कर रहा है कि तीसरी चीज़ का वो ये वेट कर रहा है कि लेट हर लाइक अगर ये इसको वापस आना होगा तो ये वापस आ जाएगी. तो मैं अभी इतने एफर्ट्स नहीं लगा रहा, मेरे को थोड़ा सा पहले खुद को हील करना है, क्योंकि ही इज़ वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ. एंड एक्चुअली प्रियंका तो फिर भी थोड़ी स्ट्रांग है, बट ही इज़ वेरी इमोशनल फ्रॉम इनसाइड. सो दिस इज़ वाई आई कैन से दैट वो शायद हो सकता है बीमार हो. एंड यू नो वॉट, ही इज़ इन अ हैंगमैन सिचुएशन. हैंगमैन सिचुएशन मतलब क्या है कि वो आगे कोई कदम नहीं बढ़ा रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई मतलब लाइक आगे जाके कोई वो नहीं कर रहा, कोई ही इज़ नॉट टेकिंग एनी लाइक डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं ले रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा. बस वो हैंगमैन सिचुएशन में है, बस दूर से बैठ के चीज़ों को देख रहा है, एंड उन्हीं चीज़ों को बार बार रीलिव कर रहा है. ही इज़ वेरी इमोशनली ड्रेन्ड राइट नाउ. ठीक है, वो इमोशनली ड्रेन्ड है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दुखी है. एंड वो सोच रहा है कि मतलब आगे बढ़ के क्या फ़ायदा, क्योंकि जब वो रेडी, हम दोनों सेम पेज पे नहीं है, हम दोनों सेम पेज पे नहीं है, हम दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, हम दो डिफरेंट लाइफ्स जी रहे हैं. उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, मुझे इस लाइफ से कुछ और चाहिए. तो इस आगे बढ़ के क्या फ़ायदा, क्योंकि क्या है कि फिर हम दोबारा से साथ आएंगे, और फिर दोबारा हम लोगों के बीच में वही लड़ाई झगड़े और वही टेंशन और वही मतलब एक्सपेक्टेशंस होंगी. मैंने जितनी बार प्रियंका की रीडिंग करी है, ये क्यों हुआ है झगड़ा इन लोगों का, एक्सपेक्टेशंस है प्रियंका की, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि वो शादी करना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ फैमिली, शी वॉन्ट्स टू हैव किड्स, शी वॉन्ट्स हिम टू गेट सेटल डाउन विद हर. बट वो क्या है, वो रेडी नहीं है बिकॉज ये हो सकता है उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये हो सकता है कि पास्ट ट्रॉमास की वजह से ही इज़ नॉट रेडी, ये भी हो सकता है कि उसको टाइम चाहिए एंड चीज़ों को स्लोली एंड स्टेडली ले जाने का. और प्रियंका सोच रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज बीइंग अ गर्ल उसके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, बीइंग अ गर्ल उसके ऊपर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी एज निकलने से पहले शी नीड्स टू गेट सेटल डाउन. वो अपना करियर और अपना जो है लव लाइफ को साथ लेके चलना चाहती है. बट अंकित आई गेस ही इज गिविंग मोर प्रायोरिटी टू लाइक आई थिंक करियर. इफ नॉट देन माइट बी ही इज नॉट रेडी राइट नाउ. दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है इस समय. ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, एंड वो जो है बैलेंस चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है. वो सब चीज़ों को याद कर रहा है, जो सेक्शुअल केमिस्ट्री को याद कर रहा है जो उन लोगों के बीच में थी.
एंड वो जो टाइम ये लोग स्पेंड करते थे एज अ फैमिली, जैसे कि दोनों का एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ मतलब बातचीत करना, सपोर्ट सिस्टम बन के रहना, फिनेंशियली हेल्प करना, एक दूसरे के हाइज एंड लोज में एक दूसरे के साथ रहना, तो वो चीज़ों को ये सब मिस कर रहा है, सेक्सुअल केमिस्ट्री को मिस कर रहा है। उसके साथ एक सेक्सुअल एनर्जी मतलब सेक्सुअल बिगिनिंग चाहता है, फैमिली स्टार्ट करने का प्लान था, वो उसके बारे में सोच रहा है कि ये सही था या गलत डिसीजन है मेरा। फिर उसके बाद क्या है, ये स्टेबिलिटी देने के लिए सोच रहा है कि स्टेबिलिटी दूँ क्या मैं उसको, क्या ये सही रहेगा। आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन फिर वो सोच रहा है हम दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है, आगे बढ़ना पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। फिर क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था, तो उसको लगता है जब इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है तो मैं आगे क्यों बढ़ूँ, इसलिए वो रुक जाता है, खुद को रोक लेता है। फिर वो वेट कर रहा है कि चीज़ें अनफोल्ड हो जाए, उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूँ। अब देखते हैं प्रियंका की क्या एनर्जी है स्पिरिट्स। उफ, ठीक है। अब देखो क्या है कि देखो प्रियंका चाहती है कि वो पैशनेट है, मतलब लाइक शी इज़ वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। उसकी एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, शी रियली लाइक्स करिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ अंकित, एंड शी थिंक दैट एज अ वॉरियर ही विल कम टुवर्ड्स मी एंड लाइक टेक एन एक्शन टुवर्ड्स मी। शी कंसीडर हिम एज हिज वर्ल्ड। ये थोड़ा कार्ड खराब है, क्योंकि काफ़ी बीक गए थे मेरे कार्ड। शी कंसीडर हिमसेल्फ एज हर वर्ल्ड। वो सोचती है दैट ही इज़ माई वर्ल्ड एंड ही इज़ माई फैमिली, एंड हर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड अंकित ओनली। उसका जो संसार है वो अंकित के आसपास घूमता है, और वो उसको लेके काफ़ी पैशनेट है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टेड है, एंड वो चाहती है कि वो आगे बढ़ के एक्शन ले, एंड चाहे स्लोली इंस्टेंटली सही, बट इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े और मुझे मनाए। उसके दिमाग में हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं, एंड वो जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, एंड उसको वो बार बार मतलब चीज़ें याद आती है कि हम लोगों की कैसे लड़ाई हुई है, एंड उसने मुझे मनाया नहीं। वो चाहती है कि वो आए और मुझे इस रिलेशनशिप के लिए मनाए, और वो वर्कआउट करे, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन ले। ठीक है, वो ये एक्सपेक्ट कर रही है, बट उसको ये भी लग रहा है कि इसने तो मेरे प्यार के कप को रिजेक्ट कर दिया और हम लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, एंड यही सब चीज़ों के बारे में वो बार बार सोच रही है। बट वो चाहती है कि विक्ट्री हो इस रिलेशनशिप में, शादी के लिए मुझे अप्रोच करे, एंड उसका सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा स्पाई कर रही है वो इस समय। ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी है प्रियंका की। स्पिरिट्स आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं प्लीज़। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन जो लोग हैं वो मतलब लाइक कर रहे हैं प्रेयर, इनके लिए प्लीज़ मुझे बताएं। देखो इनकी क्या म्यूचुअल एनर्जीज हैं। देखो इनकी म्यूचुअल एनर्जीज ये हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एंड इनको पता है कि हम लोग एक दूसरे के सोलमेट है। देखो जैसे सोलमेट क्यों है, क्योंकि एक दूसरे से बंधे हुए हैं ये।
अब इनको ये दिख नहीं रहा, लेकिन ये क्यों है, क्योंकि ये जो चेन है ये इनविजिबल चेन है, लेकिन ये क्या है, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और इनको एंजल्स ने एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है। ऐसे ये जो है एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और इनको सेपरेट करना लाइक बहुत मुश्किल है। दे आर सोलमेट्स एंड ये जो है जगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या करें, क्या करा जाए, कैसे सेम पेज पे आ जाए, किसकी गलती थी, किसकी, मतलब वो सारी पास्ट की चीज़ें इनको जो है याद आ रही है। अब ये सॉर्ट करने की कोशिश करें कि किसकी गलती थी, किसने क्या गलत किया और किसने क्या सही किया। एंड इनको बर्डन हो रहा है। बर्डन क्यों हो रहा है कि मतलब ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, क्या होगा, कल को सोचकर इनको स्ट्रेस हो रहा है। एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में है दोनों, ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, टॉक्सिसिटी के अंदर है दोनों, बहुत ज़्यादा नाराज़ है एक दूसरे से, गुस्से में है। एंड बार बार जो है नेगेटिविटी, मतलब पॉजिटिव सोचते हैं फिर उसके बाद नेगेटिविटी आ जाती है इनको, क्योंकि क्या है कि वो हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं। दे आर लिविंग देयर हैप्पी मोमेंट्स, दे आर रीलिविंग देयर हैप्पी मोमेंट्स, and then again like they are coming on this in this energy of a devil, thinking negative about it, and then thinking about the chaos, thinking about the burden, thinking about not taking any action, thinking about the fights and everything. So basically they are just in dual mindset. They're just trying to like heal this relationship, trying to bring the balance in this relationship. And in this relationship they like thinking that they are soulmates and angels are having their back, and they're doing introspection, thinking about that what should we do in this relationship to like heal this relationship and take this relationship to a next level, and who has done what, and who should not do what. They just want to like reconcile, they just want to celebrate, they just want to like enjoy, party, but they're in the dual mindset that like if we will like do this again, then we are like after a specific time the thing's gonna be in a like again on the like again going to end up like this only. So they don't want to do any like take any action right now. But if you see like from outside they're showing their ego and like showing their anger, but from inside if you will see, their soul is chasing each other, their soul is craving for each other, and they just want like they want a balanced relationship, they want to bring balance in this relationship. Priyanka is full of love and Ankit is also full of love. He is right now in a female energy, and he is now in a yin and yang, yeah. So he's now in a female energy and he's thinking about like giving her, he's being very emotional actually. They both are waiting for like the time to get turn into his favor, to like time to get change and turn into their favor. Okay, so what is the next step going to be in this relationship for like what is the next step Ankit is going to take in this relationship? What is the next step Ankit is going to take in this relationship? Whew. Dekho, he's right now sad, yeah, but soon he's going to take his guards down, because he's thinking about but because he's thinking, oh, he's overthinking, and he's thinking about that why should I left her out in cold, why should she left me out in cold, she should not be doing this. And it is like he's like feeling guilty, he's feeling sad,
that why I left her out in the cold, and should I convince her, go towards her. And soon after, like, after think 6 7 weeks, or might be 6 7 months. Maximum time is 7 months, but maximum, like minimum 7 weeks and maximum 7 months. Within like this time frame, he's going to like, he's thinking that I should go towards her. He's dreaming about her, he's thinking about her. So within might be 7 months he will go towards her, and he will convince her, because he wants celebration with her, he wants family with her, he wants to come in the power, and might be he will take a decision, and he will like, might be reconcile with her. And I'm not saying about marriage, but he definitely wants some celebration with her, and he want like to like, he's thinking about starting a family with her, but he might come in his power and take action, start a new beginning with her, complete this bad poor cycle and start a new beginning with her, bring balance in this relationship, because Priyanka is his wish fulfillment. Okay, so I think you need to calm down, just send them prayers, send them wishes, send them like good luck, and try to like, send them positivity. इस रिलेशनशिप में अब मैं बताती हूँ तुम्हें हिंदी में कि क्या है, कि अंकित जो सोच रहा है, अंकित सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, एंड उसको लग रहा है कि मैंने ये क्या किया, कैसी गलती हो गई, प्यार, ये वाला कार्ड तो छूट ही गया। प्यार बहुत है दोनों के दिल में, एंड मेरा प्यार, उसके दिल में प्यार बहुत है प्रियंका को लेकर, बट वो अपने गार्ड्स डाउन करेगा बहुत जल्द, क्योंकि प्रियंका जो है उसकी सोलमेट है। ये वाला कार्ड भी छूट गया एक्चुअली, ये उसकी सोलमेट है, एंड वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो काफ़ी ज़्यादा सैड है अभी, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है, एंड अभी क्या है कि उसको लग रहा है कि शी लेफ्ट मी आउट इन कोल्ड एंड आई लेफ्ट हिम आउट इन कोल्ड, बट क्या है, वो सेलिब्रेशन चाहता है, खुशियाँ चाहता है, एंड रिकनसाइल करना चाहता है उसके साथ। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर रिकन्सिलिएशन, एंड उसके बारे में सोचता रहता है कि ये क्या, मतलब लाइक प्लानिंग करता रहता है, अपनी पावर में वो आएगा, बहुत जल्दी डिसीजन लेगा, क्योंकि प्रियंका जो है उसकी विश फुलफिलमेंट है, वो बैलेंस चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में। अब देखते हैं प्रियंका का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिलेशनशिप में। देखो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड अनहेल्दी अटैचमेंट है, लेकिन उसको पता है कि इसने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, एंड इसलिए जो है वो, मतलब लाइक अट्रैक्शन होते हुए भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी है हमारी, अट्रैक्शन है मुझे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो है सरेंडर कर चुकी है इस रिलेशनशिप को, एंड वो यूनियन चाहती है, यूनियन में आएंगे बहुत ज़्यादा जल्दी ये, एंड इनकी कम्युनिकेशन की लाइंस जो बंद है वो शुरू होंगी, एंड क्या कहते हैं, सन अबंडेंस आएगी इनकी लाइफ में, एंड इक्वल गिव एंड टेक आएगा इनकी लाइफ में, एंड जो गार्ड्स इन्होंने अप किए हैं प्रियंका ने, उसको जो है अनफोल्ड करेगी, क्योंकि शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी हिज वाइफ, एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स कि वो आए मुझे कमिटमेंट दे, ठीक है। बट प्रियंका अपनी ईगो में रहेगी, अंकित की तरफ से मेरे ख्याल से इस बार पहल होने के चांसेस हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे ना, कोई एक है, मतलब लाइक एक है कोई जिन्होंने जो है ना, मतलब लाइक ये स्पेल बताती हैं और स्विच वर्ड्स बताती हैं यूट्यूब पे, आई डोंट वांट टू रिवील हर नेम, ठीक है, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती कि लोग इस चीज़ को मिसयूज़ करें।
तो क्या चक्कर है कि उन्होंने एक चीज़ बताई थी और वो मेरी आजमाई भी है। मैं काफ़ी बार, जैसे कभी जो दोस्तों वगैरह से लड़ाई हो गई तो आई हैव यूज्ड फॉर इट। क्या तुम मुझे अंकित का डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो, जो सही डेट ऑफ बर्थ है, गलत नहीं, अंकित गुप्ता का पूरा सही डेट ऑफ बर्थ क्या कोई मुझे बता सकता है? और प्रियंका का कमेंट सेक्शन में अगर दोनों में से कोई मुझे बता दे तो मैं शायद कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन मुझे एग्जैक्ट चाहिए, मुझे गलत नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्पेल उल्टा हो जाएगा। एज जो उनकी है वो सही होनी चाहिए। वो जो टेलीविज़न पे बताते हैं वो उनकी झूठी एज है, तो उनकी एग्जैक्ट एज है मुझे वो जाननी है। प्रियंका 28 साल की 27 साल की नहीं है, वो सबको पता है। 27-28 साल का बच्चे की फेस पे बहुत इनोसेंस होती है। दे लुक वेरी मेच्योर एंड वेरी मतलब लाइक चालू टाइप या, बट मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहती। बहुत इनोसेंस होता है छोटे बच्चे के फेस पे, चाहे वो कितना ही मोटा हो या कुछ हो, वो बहुत क्यूट सा और उसका बहुत ज़्यादा ये होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मेच्योर लगते हैं। आई जस्ट नीड टू नो देयर एक्चुअल एज। और मैं एक स्पेल ट्राई करना चाहती हूँ, सीक्रेटली ट्राई करूँगी। अगर वो वर्कआउट कर गया तो अच्छी बात है, मैं पहले एक बार ट्राई करूँगी। अगर नहीं काम करा, क्योंकि वो 1 हफ्ते का पूरा स्पेल है, अगर 1 हफ्ते के बाद और 1 हफ्ते करके उसको छोड़ दो, उसके बाद क्या करना होता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर चीज़ें ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ब्रेक लेने के बाद फिर मैं दोबारा ट्राई करूँगी। एंड आई मैं को इस स्पेल पे 100% उम्मीद है, लेकिन अब मुझे नहीं पता। मैं अपने दोस्तों के लिए करती थी, तो ऐसा ना हो अंकित मेरे पास उठ के आ जाए क्योंकि क्या है कि ये जो है कोई पर्सन जैसे मुझसे नाराज़ है या मुझसे बातचीत नहीं कर रहा और उसका मैं चाहती हूँ कि मेरे को कॉल करे या मुझसे बात करे या मुझे अनब्लॉक करे, तो जो है ये एक स्पेल यूज़ होता है। अब क्या है कि अगर मैंने किया अंकित के लिए, प्रियंका के बिहाफ पे, तो कैसे काम करेगा मैं वो सोच रही हूँ। क्योंकि क्या है कि ये वही पर्सन कर सकता है जिसको अपने पास कॉल लगवानी है या जिसको अनब्लॉक कराना है। बट फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो है इनका एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ चाहिए। और ये कहाँ कहाँ के हैं, ये कौन कौन सी जगह के हैं ये लोग। आई विल ट्राई, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं। और वो स्पेल मैंने इतनी बार ट्राई किया ना, इतनी बार ट्राई किया है, वो जितनी बार भी ट्राई किया वो हर बार वर्कआउट करता है। तो उस स्पेल पे तो मुझे क्या हज़ारों प्रतिशत वो है, क्या कहते हैं, फेथ है। देखते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है। 3 कार्ड्स फॉर अंकित एंड 3 कार्ड्स फॉर प्रियंका। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिलेशनशिप में, मुझे वो देखना है। प्लीज स्पिरिट्स मुझे इनका नेक्स्ट मूव बताइए। 3 कार्ड अंकित के लिए, 3 कार्ड प्रियंका के लिए। अपनी पावर में आएगा, लीप ऑफ फेथ लेगा एंड अबंडेंस लेकर आएगा इस रिलेशनशिप में। प्रियंका का क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, क्या क्या होगा नेक्स्ट मूव प्रियंका का इस रिलेशनशिप में। बड़े एक्यूरेट कार्ड आए हैं यार, होना भी ऐसे ही चाहिए। प्रियंका सिर्फ मैनिफेस्ट करेगी, हो नहीं जाएगी अंकित के पास, ठीक है। इस बार अंकित का वेट करेगी वो। और क्या कहते हैं, वो स्ट्रेंथ रखेगी, हिम्मत रखेगी कि आएगा तो यही आएगा, मैं नहीं जाने वाली। मैं तो अब तो मुझे इससे शादी के लिए हाँ करवा के ही मान लूँगी मैं, ठीक है। और क्या है कि ये उसको लगता है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, कहाँ जाएगा, मेरे पास ही आएगा। मैं तो शांति से बैठ के बस मैनिफेस्ट करूँगी, ये इसको ही आना पड़ेगा मेरे पास। क्योंकि क्या है कि हम डेस्टाइन कनेक्शन है हमारा, ये मेरा सोलमेट है और हर सूरत भगवान इसको मेरे साथ में लाएगा। और यही विश्वास तुम सबको रखना है कि हर सूरत भगवान इनको साथ में लेकर आएगा, बिकॉज दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड दोज हु लव ईच अदर, गॉड विल conspire like against negativity and against all the negative and odd things going on and bring two people who love each other together. Okay, so तुम लोगों को ऐसे ही सोचना है। बाय द वे तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने टोपा क्यों
मैंने हैट क्यों पहना है? मैंने हैट नहीं पहना यार, मैंने ना एक्चुअली क्या है दीपिका पादुकोण का कोई लुक था वो ट्राई किया है। अम, वो कहीं पे गई थी, आई डोंट नो कहाँ गई थी, कांस के लिए गई थी शायद, पता नहीं कहाँ गई थी, मुझे नहीं पता। तो उसका वो लुक ट्राई किया मैंने, मुझे अच्छा लगा था, एलिगेंट सा, बट उसके हैट पे ये नहीं था। मैंने ये मेरे हैट पे है, तो आई जस्ट लाइक दैट। क्या चैनल चलाने के लिए शो ऑफ। सेलिब्रिटी रीडिंग कर रहे थे, हमें भी तो सेलिब्रिटी जैसे दिखना है ना। जस्ट जोकिंग मैन। आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ, विद माई लुक्स। तो बस ठीक है, कर लिया। वैसे मुझे मेकअप उतना अच्छा नहीं करना था। शी लुक्स ग्रेसफुल, शी इज़ ब्यूटी। तो उनकी डार्क कन्फेशंस क्या हैं, अंकित की क्या एनर्जी है, उसकी क्या कन्फेशंस हैं आज प्रियंका को लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई प्ले डम टू कीप यू कंफ्यूज्ड। I feel cold and detached from this connection. I can't feel emotions right now. Liar. I was afraid that you would reject me if I will share my feelings to you. Of course, she's going to reject you right now. She's so angry, and if you will make a mess, then you need to, like, make it right. I've lost all my control of my life. I keep messing up. I know that. You're a health hazardous person. I try to run from this connection, but my soul craves for you. I understand, kids. I really understand. This is what I was telling about you a few minutes back. I have a karmic debts that I need to be paid before I come back to you. See, he needs to pay back the karmic debts. Maybe their spirits are spirits are testing, or angels are testing their relationship, that how pure is their soul, how pure is this bond, what they can, up to what extent they can go for each other. And in the highs and lows of life, in the difficult situation of life, are they going to stay with each other or not? So this is why they are being tested right now. And this is if they will pass this test, then the universe will bring them together. So this is the debt he's paying right now, and he will come back to her. What is the energy of Priyanka in this relationship? What is the confessions of Priyanka? My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. Yeah, she's doing it right because she's focusing on her career right now. Earlier, she used to get she used to get very upset. She used to get very low. She used to get mad earlier. But now she's thinking that I need to focus on my career, because if I will not focus on my career, how I'm going to lead my life ahead. As Ankit is already established, and her career is just started. So this is why she's doing it right, and this is going to help her out in coming out of the chaos situation. Because if she just sit back and keep thinking about the negative things, she's not gonna go anywhere. So she's making a right move. She's keeping herself busy so that she will not overthink about things, and she surrendered this relationship and herself in the hands of universe. And she's believing that if spirits want, angels want, and universe want, they will bring us together, because we are made for each other. And yes, and this is what she's thinking right now. My life is my focus is of my life. This is what she's saying. My focus is on my life. I can't be bothered right now. I knew I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. She don't want to fight for this relationship no more, because she want Ankit to take step in this relationship. My mask keeps me safe. I need to fake my feelings. She needs to fake her feelings. This is what I'm saying. She's trying to be strong from outside, but she is missing Ankit from inside, because she craves for him, and she thinks that he's my soulmate. No one else make me feel the way you do, but I will take it to my grave before I tell you. He already knows, baby. You don't need to take it to the grave. He already knows about all this.
I depend on you too much to let you go. I have codependency issue. Yes, you have codependency issue. This is why he was not like getting serious for you. He was taking you for granted. But you did a right move, because if he really loves you, then he is going to come like on the same page as you are. I can't support your action. It's too much for me to deal with. Yeah, so he can't support her actions, because if you want living relationship throughout life, then she can't support his action. Let's see from Keepers. Keepers, my love. Is there any chances for Priyanka and Ankit to get reconciled together? Is there any chances of Priyanka and Ankit to get reconciled? Ooh. Okay, tell me about Ankit first. Is there any chances for him to reconcile with Priyanka? Yes. ये कार्ड मैंने रख दिया था, वापस आ गया। देखो, ये होती है एनर्जी। देखा, देखो भाई, अंकित जी महाराज आएंगे बाहर। इस नेगेटिव एनर्जी से कार्ड रिवर्स आया है, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आएंगे सर, क्योंकि आपने अदर कार्ड से भी देखा। एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम आने के चांसेस हैं, ग्रोथ आने के चांसेस हैं, इस रिलेशनशिप में अबेंडेंस आने के चांसेस हैं। एंड सडन वेल्थ आएगी। वेल्थ उसकी मुझे लगता है प्रियंका ही है। अगर हम लिटरल सेंस में ले तो उसको लगता है शायद उसको कोई प्रोग्राम, सीरीज़ या कुछ और भी मिलेंगे। एंड देखो, मैंने तो जैसे कि पहले ही तुम्हें बताया कि 7 हफ्ते या 7 महीने के अंदर अंदर ये कम्युनिकेशन शुरू होगी। यहाँ पर भी लेटर आया है, 7 वो आया है लेटर, और वहाँ पर भी वो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था। सो क्या है कि ये कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी 7 हफ्तों के अंदर, एंड या 7 महीने के अंदर अंदर। वैसे 7 हफ्ते इज़ द मैक्सिमम टाइम। एंड एक दूसरे से मैसेज करके बात करेंगे ये पहले, ठीक है। और ये किसी मेल का ही हाथ है, तो मुझे लगता है अंकित ही करेगा शुरुआत। एंड सोशल मीडिया पे बात करेगा, मैसेज करेगा पहले, क्योंकि फ़ोन तो रखा है। फ़ोन नहीं करेगा, मैसेज करेगा पहले सोशल मीडिया पे। वो पहले पता क्या करेगा, जो लेटर उसको लिखने होंगे ना, वो सारे लेटर लिख करना रख लेगा एक जगह पे, देगा नहीं। लेकिन फिर उसको लगेगा कि यार चल लिख ही देता हूँ, तो फिर वो लिख कर जो है उसको पोस्ट कर देगा, फिर उसको मैसेज कर देगा। पहले वो सोचेगा कई बार मैसेज करने की, लेकिन वो करेगा नहीं, टाइप करके और डिलीट कर देगा। फिर उसके बाद उससे जब रहा नहीं जाएगा तो वो लिटरल सेंस में उसको मैसेज करेगा, मेल करेगा। मेल भी कर सकता है, वैसे मैसेज करेगा। उसका मेन मेल बनना चाहता है, उसको जजमेंट देना चाहता है, एंड उससे बहुत प्यार करता है। तो रिकन्सिलेशन के देयर आर हाई चांसेस। एंड देखते हैं प्रियंका रिकन्साइल करना चाहती है इस रिलेशनशिप में। वो तो सीधा शादी ही करेगी भाई। हाउस बनाना चाहती है वो, तो फैमिली बनाएगी। उसको छोटा मोटा कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस शादी ही करेगी वो। प्रिविलेज लेडी लगती है वो कहती है मैं कम में मानूंगी नहीं, मैं तो भाई शादी ही करूँगी। अब बस बहुत हो गया अंकित। अभी जो है वो इन प्रेजेंट लग रही है, केज्ड फील कर रही है, इन प्रेजेंट फील कर रही है। बट वो जो है चाहती है
टू स्टार्ट अ फैमिली, टू हैव अ चाइल्ड। और ये भी हो सकता है कि उसका इनर चाइल्ड जो है वो इन प्रेजेंट फील कर रहा है, सफोकेटेड फील कर रहा है, अभी इस एनर्जी में है, वो डिस्पेयर की एनर्जी में है, सैड है। इसके मैं पूछ रही हूँ इस रिलेशनशिप में आगे क्या चाहती है वो, क्या उसका मूव होगा रिकन्सिलिएशन को लेके। मेन फीमेल बनना चाहती है वो भी इसकी लाइफ की, एंड वो चाहती है वेल्दी मैन बने, ये इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करे, फैमिली स्टार्ट करे मेरे साथ, और इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंज आए। हमारे पास एक बड़ा सा घर हो, क्लैविश गाड़ी हो, अंकित के और मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, ऐसी लाइफ चाहती है वो, ठीक है, जो कि हर लड़की चाहती है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स के क्या आंसर हैं। फिर इसको वाइंड अप करेंगे। एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अंकित के लिए? अंकित को इस टाइम लग रहा है अनरिक्वेटेड लव, ठीक है, जो कि लव अधूरा है, पूरा नहीं है। प्रियंका प्यार नहीं करती जितना वो प्यार करता है, और उसको लगता है ये मेरा ट्रू लव है। एंड एंजल्स भी कह रहे हैं ये तेरा ट्रू लव है, मेक द एफर्ट्स, इसकी तरफ एफर्ट्स बना लगाओ एंड रिकनसाइल करो। देखो अब मैंने कल भी बताया था रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, यहाँ पर भी देखो, तो देर आर हाई चांसेस फॉर रिकन्सिलिएशन, क्योंकि को डिपेंडेंसी इशू है। अभी क्या है कि ये पता रिकन्सिलिएशन क्यों नहीं हो पा रहा इतनी जल्दी, क्योंकि क्या है ये को डिपेंडेंट है, 24/7 उसके बारे में सोचता है। अभी तो इसने देखो ये कितना ज़्यादा को डिपेंडेंट है कि इसने अपना काम धाम सब छोड़ दिया और बस नेगेटिव चीज़ें सोच जा रहा है ये, तो ये को डिपेंडेंसी इशू होता है, ये ना नेगेटिव माइंडसेट होता है। आपको क्या करना है, आपने क्या करना है उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो सोच लिया, ख़त्म, छुट्टी। अब फ्यूचर के बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये मेरे पास नहीं आया ना, इनको मैं बताती, वरना मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। मेरे पास भेज देना यार मेरे चैनल पे, मैं बता दूंगी इनको। अब देखो प्रियंका क्या है, उसको लगता है हमारे बीच में हाई केमिस्ट्री है, और एंजल्स भी उसको यही कह रहे हैं, न्यू लव आने वाला है उसकी लाइफ में, ठीक है, न्यू लव वही कि नए प्यार की शुरुआत होने वाली है उसकी लाइफ में, सोलमेट, ये पर्सन इसका सोलमेट होगा। लेकिन इसको अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में रहेगी ना ये जितना, और नेगेटिव कम सोचेगी, अपने काम पे फोकस कर रही है, बहुत सही कर रही है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, दिस कुड बी द वन, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और वेरी सून इसको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जीज में ना रहेगी, नेगेटिव हो करेगी तो नेगेटिव का होगा। ये देखो ये दोनों ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है। अब ये क्या है, फॉल्स मास्क पहना हुआ है इन दोनों ने, अंकित और प्रियंका ने, अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा रहे, बट अंदर से क्या है, ये यही चाहते हैं कि साथ में आ जाएं, शादी हो, बच्चे हो, फैमिली हो, रिकन्सिलिएशन हो जाए हमारा। तो झगड़ा क्यों किया था गधो? एनीवेज सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो से, बाय बाय। ओह ग्लव्स पहना हुआ है, अरे